It is no secret what God can do. परमेश्वर क्या कर सकता है, यह बात कोई रहस्य नहीं। What He has done for others, परमेश्वर ने दूसरों के लिए जो कुछ किया है, He will do for you. वही काम वो तेरे लिए भी करेगा। Hallelujah. With arms wide open, He will pardon you. बाहों को पूरा खोल कर वो तेरे पापों को माफ कर देता है। It is no secret what God can do. परमेश्वर क्या कर सकता है, यह कोई भेद की बात नहीं है। Sunday school children. संडे स्कूल के बच्चे जा सकते हैं। Hallelujah. There is freedom in the house of God. परमेश्वर के घर के अंदर आजादी की आत्मा होने पाए। Are you here this morning? क्या आज सुबह आप इस जगह में हैं? Amen. आमीन। Remember, there is no one great or small in the house of God. याद रहे, परमेश्वर के भवन में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। No rich or no poor. यहाँ कोई गरीब और अमीर का दर्जा नहीं है। We have nothing to offer unto God. परमेश्वर के पास देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। Only what we give is what God has already given to us. केवल वही चीज हम उसको दे पाते हैं जो परमेश्वर से ही हमें मिला है। So let us not pride over what we have. इसलिए इस बात पे घमंड ना करें कि हमारे पास क्या है। Let's not pride over what we wear. क्या पहनते हैं, ये घमंड की बात नहीं है। Let's not pride over on what we travel on. हम किस पे चलते हैं, घमंड की वस्तु नहीं है। If at all we have to boast, we can boast on the cross of the Lord Jesus एक Christ. बात पे हम गर्व के साथ कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर। Amen. आमेन। We know this scripture. हम उस पवित्र शास्त्र को जानते हैं। God knows the proud far off. परमेश्वर घमंडियों को दूर से पहचान लेता है। Amen. आमेन। And God has no time for the proud. और परमेश्वर के पास उनके लिए कोई वक्त नहीं है। So we don't come here with any air on our own selves. और इसलिए जब हम प्रभु के भवन की इस जगह में हम आते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई भी भाव को लेकर नहीं आते हैं। Look at the table which is before us. क्योंकि ये जो मेज हमारे सामने यहाँ रखा है, It reminds us again and again. यह मेज हमको बारंबार यह याद दिलाता है Only a sinner saved by grace. कि मैं और आप केवल एक पापी थे जो मसीह के लहू से बचाए गए हैं। Amen. आमीन। This is my story. मेरे जीवन की संपूर्ण कथा बस इतनी है। And to God be the glory. इसलिए सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले। Only a sinner केवल एक पापी मनुष्य saved by grace. अनुग्रह ने उसको बचा लिया है। Amen. आमीन। Just for 2 minutes, just give thanks to God. क्यों न हम 2 पल लेकर अपनी आंखों को बंद करें There is और some प्रभु को room inside. धन्यवाद There's empty देंगे। here. प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ किया है। इस दौरान जो बाहर हैं, अंदर आना चाहते वो आ सकते हैं, अन्य लोग प्रार्थना करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hurabasi balama shakadarabashi. Korana malira la kashura la bara baba bara baba. Jesus. Oh Jesus, we bless your name.
Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power, Lord. Come in your own special way. Please come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power, Lord. Come in your own special way. Heavenly Father, we thank you स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं that we can walk into the Holy of Holies कि हम अति पवित्र स्थान में चल सकते हैं in and through the name of Jesus, your Son. यीशु मसीह तेरे बेटे के नाम में अंदर आ सकते हैं। There's nothing good in us that we can boast of. हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं जिसको लेकर हम घमंड कर All we boast of is in the righteousness of Christ, your Son. हमें घमंड है प्रभु यीशु मसीह की उस धार्मिकता के ऊपर। Thank you, Lord, for forgiving our sins. धन्यवाद हमारे गुनाहों को पूरा माफ Thank you, करने। Lord, for washing us in your precious blood. धन्यवाद अपने बहुमूल्य लहू में हमें धोने के लिए। Thank you for every blessing you poured upon us, Lord. धन्यवाद और एक आशीष जो तुम्हारे जीवन पे डाला। Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा take control. इस जगह का नियंत्रण। Give us utterance to speak your word. कलाम को बोलने की शक्ति दे। Bless your precious people. अपने बहुमूल्य लोगों को आशीष दे। Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। Everybody say, हर एक जन कहे Amen, 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 Amen. Shall we open our Bibles to the book of Ezekiel? आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे एहezकेल नबी की किताब The 36th chapter. और उसका 36 अध्याय। We will read here and there. और इसमें हम कुछ आयतों को अलग स्थानों से पढ़ेंगे। Ezekiel, the 36th chapter. यह एहezकेल नबी की किताब उसका 36 अध्याय। We are all very familiar with 37. हम सब यह एहezकेल 37 से परिचित है। We will read a few verses here. कुछ वचनों को हम 36 अध्याय से पढ़ेंगे। We will read from verse 25. और उसकी 25 आयत से। It's in continuation of what God has been saying. परमेश्वर जो अब तक बोलता आया है उसी के निरंतरता में यहाँ लिखा हुआ है। Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away that stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा
कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। And ye shall dwell in the land that I give to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। I will also save you from all uncleanness, and I will call for the corn and will increase it and lay no famine upon you. मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। I will multiply the fruit of the tree and the increase of the field, that ye shall receive no more reproach of famine among the heathen. मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई ना होगी। Then shall ye remember your own evil ways and your doings that were not good, and shall loathe yourselves in your own sight for your iniquities and for your abominations. तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। This chapter is talking about the blessing the children of Israel are going to receive when God restores them back. यह अध्याय उन आशीषों को बताता है जो परमेश्वर जब इस्राएलियों को वापस लौटा कर लाएगा तो जो आशीष वे पाने वाले हैं। You see, they have been in a lot of captivities, देखिए इस्राएली लोग बहुत से अलग अलग बंधुआई में गए थे and many of these prophecies came during that time. और बहुत सी ये भविष्यवाणी इन्हीं समयों में इन लोगों को मिली थी। And we know the reason why they were dispersed, और हम ये बात भी जानते हैं कि इस्राएली लोग तितर बितर क्यों हुए थे, because of the disobedience to God's word and God's commandments. परमेश्वर की आज्ञाएं और परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करने के कारण उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। So this chapter is talking about the restoration of Israel. इस अध्याय में वो इस्राएलियों को पुनः उनके घर वापस लाने की बात कहता We है। all know that God chose Abraham to be the father of many nations. यह बात हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत से राष्ट्रों का जातियों का पिता होने के लिए चुन लिया था And through his descendants, और उसके वंश के द्वारा whom we call the children of Israel, जिनको हम इस्राएल की संतान भी कहते हैं, they will become a witness to other nations. वे लोगों को परमेश्वर दूसरे देशों के लिए गवाह के रूप में ठहराने पर, So that they too will turn from their idolatry and sins and follow the true and the living God. ताकि इजरायली लोग भी अपने पापों से मुड़ जाएं। The heathens, other अन्य nations. जाति जो है इस्राएलियों के कारण अपने मूर्तियों से और अपने पाप में जीवन से मुड़कर जीवित प्रभु के पास आ जाएं। Because God has said to Abraham, you will become father of many nations. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तू बहुत से जातियों का पिता होगा। Not a nation, एक राष्ट्र का नहीं, but many nations. बहुत से राष्ट्रों का। So the people of the world will come to know who the true and the living God is. तब उसके कारण दुनिया भर के लोग जान जाएंगे कि जीवित और सच्चा परमेश्वर इस दुनिया में कौन है। And to know the true and the living God, और जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए and also to know what blessings follow them. और यह will follow जानने के them. लिए कि कौन सी आशीष उनके ऊपर आएगी उसके कारण। Bible says, बाइबल कहती है blessed is the nation whose God is the Lord God. धन्य है वो राष्ट्र जिसका परमेश्वर यहोवा है। Amen. Amen. You can see how some nations have just been born 400 years back. हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी राष्ट्र है जिसका जन्म केवल 400 साल पहले हुआ Maybe है। 500 years now. शायद 500 साल अब हो गए होंगे, But they are now the topmost in the whole world.
परंतु आज पूरी दुनिया में वो सबसे ऊंचाइयों में हैं। The reason for that, उसके पीछे कारण ये है, the leaders feared God. उनके जो पूर्वज थे वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। Even on their currency it is written, in God we trust. यहाँ तक कि उनकी मुद्रा में भी ये मुद्रित है कि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। And some of them said like this, और उनमें से कुछ ने ऐसा कहा, we cannot govern this almighty such a lot of people without the help of God. कि हम इतनी बड़ी विशाल जन समुदाय का अगुवाई बिना परमेश्वर की मदद के नहीं कर These सकते। are praying men, वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, and the foundation they laid और जो नींव इन लोगों ने अपने देश की डाली, brought forth evangelists and prophets and so many people from that country. उसके कारण उन देशों से भविष्यवक्ता, प्रेरित और प्रचारक निकल कर आए, They came to our land. और ऐसे संदेश को लेकर हमारे भारत भी आए। In fact, we received the gospel before them. और यद्यपि उन पाश्चात्य लोगों को पाने के पहले हमने सुसमाचार को पा लिया था, But we do not know what we did. परंतु हम नहीं जानते हमने उसका क्या किया। We just remained there. हम शायद वहीं पर कहीं रुक गए, Nobody came around और कोई evangelizing. सुसमाचार प्रचार करने इन दिशाओं में नहीं I should आया। not say nobody. मैं नहीं कहूंगा कि कोई नहीं आया, Very few came out बहुत कम लोग निकले to evangelize this land. इस देश को सुसमाचार प्रचार करने। Blessed is that nation धन्य है वो देश whose Lord, whose God is the Lord. जिसका परमेश्वर यहोवा है। Amen. आमीन।